ہر سال کی طرح اس سال بھی کاروان کا حصہ بنے، اس میں مبتلا لوگوں تک علاج کی سہولیات کو ممکن بنائیں، اپنی زکوٰۃ اور عطیات دیں کاروان حیات کو۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ یہاں پہ کاروان حیات جو کہ نان پروفٹ مینٹل ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن ہے، جس کو 1983 میں جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور ماشاءاللہ سے 41 سال سے مینٹل ہیلتھ کے اوپر الحیات کام کر رہی ہے۔ سی او صاحب موجود ہیں، ارشد رحیم خان صاحب، عزت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عروسہ طالب ہیں، چیف میڈیکل آفیسر ہیں کاروان حیات میں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا بریفلی اس پہ بات کی جائے کہ آپ لوگ کن کن شعبوں میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اس کا اگر میں بیسک سے شروع کروں تو وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ جو WHO کی ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی، وہ یہ کہتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی ذہنی بیماری بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی جو بھی آپ کی زندگی کی خدمات ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ وہ احسن طریقے سے کر سکتے ہوں، اور چوتھا آپ کی ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہو۔ دس از دا ہول ڈیفینیشن آف ہیلتھ، جس میں مینٹل ہیلتھ کا کمپوننٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سو اب جب بھی ہم ہیلتھ کی بات کریں گے، ذہنی صحت کو الگ کر ہی نہیں سکتے، فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ٹاپ موسٹ مشینری ہے اور جس پہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہے اور انحصار ہے۔ سو کاروان حیات ظاہر 41 سال سے اس شعبے میں کام کر رہا ہے، اور ہمارے پاس ہر شعبہ ہاتھ سے لوگ آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ طبقہ زیادہ آتا ہے، ظاہر فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں، تو جو کہ انڈر پریولیج اور جن کو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ موٹیو، مشن اور ویژن بھی یہی تھا اس ادارے کا جب بنا تھا 41 سال پہلے، کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کہیں سے بھی اپنا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، جو نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا ہو۔ اور پھر اگر آپ پورے شہر میں یا پورے ملک میں سروسز کو دیکھیں مینٹل ہیلتھ کی، تو وہ بڑی ڈسکریٹ ہیں، کہیں کوئی سائیکائٹری ہو رہی ہے، کہیں پہ سائیکالوجی ہے، کہیں پہ۔ کاروان حیات از ون اسٹاپ سولوشن، انڈر ون روف تمام سہولیات میسر ہیں، جس میں نہ صرف ٹریٹمنٹ، ادویات، سائیکالوجسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، ہمارا ڈے کیئر اور ریہیبلیٹیشن پروگرام وچ از یونیک، اور پاکستان میں کہیں پہ بھی اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اور جب ہم ریہیب کی بات کرتے ہیں تو پیکیج میں تھوڑا سا گلمپس دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فنکشنل ریکوری کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ذہنی امراض سے جب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک بندہ افیکٹ نہیں ہوتا، اٹس دا ہول فیملی دیٹ سفرز۔ بالکل ویری ٹرو۔ سو اس لیے ہمارا فوکس مور اینڈ مور انٹو فیملی انٹرونشنز ہے، جہاں پہ فیملی کو گائیڈ اور اکوپ کیا جاتا ہے، بیکاز کرونک جو بیماریاں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر زندگی بھر ساتھ چلتی ہیں، اور ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے یا ان کو دنیا کی مین اسٹریم سے ہٹا دیا جائے۔ وی بلیو ان فنکشنل ریکوری، اور ہم پروموٹ کرتے ہیں ان کی اس ریکوری کے پروسیس کو، اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف genuine support from our loyal corporates and loyal donors۔ ویری ٹرو۔ اور جب آپ بات کر رہی تھی میں یہی سوچا تھا کہ پاکستان میں نا یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ٹیبو بھی ہے، کہ اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، تو پیپل تھنک کہ میں اگر آپ کسی کو سر کہہ دیں ایسے ہی کہ یار آئی تھنک تم کسی سائیکالوجسٹ کو دکھاؤ فار دس ریلیشن، یا اپنے لیے، یا اینگر مینجمنٹ کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے، یا کسی، تو کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں، میں مطلب کیوں جاؤں؟ تو سر یہ بڑا ابھی تک مطلب 2024 ہے سر، اور لوگ ابھی تک اسی چیز پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا میں یہ ہے، مور اور لیس، کہیں پہ کچھ تھوڑا سا بقدر کم ہے، اور پاکستان میں ابھی بھی اس کو ہم ٹیبو بھی کہہ لیں، اس میں ہم نے اس کو باکس میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی بھی ایسا آ جائے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹل کا لفظ استعمال کریں یا ذہنی کا لفظ استعمال کریں تو فوراً آپ کو ایک ڈبے میں بھیج دیا جائے کہ آپ تو یہ ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو یہ اس سے ہمیں نکلنا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، the overarching statement is mental health is all. If you don't have mental health then you have nothing, there is nothing. This is the، اور mental health کا صرف تعلق یعنی صرف برین سے ہی نہیں ہے، اس کی ساری باڈی کے فنکشن سے ہے، everything starts and ends there. تو اس لیے اس کو ہیلدی رکھنا، اور کیسے ہیلدی رکھنا، اس کے یہ ہمارے سوسائٹی کا اولین اس وقت ترجیحات میں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر
हमारी इंडिविजुअल, कलेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक एफर्ट्स जो है ना इसके ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए कि हम अपने माशरे में मेंटल हेल्थ को किस तरह प्रमोट करें। और इसके तरीके हैं, मतलब देयर इज़ नो नीड कि हम कुछ इसलिए ना करें कि हम किसी को कह देंगे मेंटल है तो वो बस कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारी एक काम जो हम अभी इस वक्त कारवान हयात में कर रहे हैं, अपनी मेडिकल फैकल्टी, अपनी साइकोलॉजी, रिहैब, सारी टीम के साथ मिलके, वही कि how to create a functional nomenclature which can help to extend our services in a way that people don't feel that we are going to something which is not acceptable or where I can be put in a box. ये कर रहे हैं। सो सर, ये जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं ऑफ कम्युनिटीज़ टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, ये आप लोग कैसे मतलब करते हैं? लोग आप लोगों तक कैसे अप्रोच करते हैं? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठीक है हम अपील के लिए तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचनी चाहिए। कारवानियात के दरवाजे हर तबके के लोगों के लिए खुले हैं। हमारे पास वो तबका भी आता है जो अफोर्ड कर सकता है, और 96-97% वो तबका आता है जो नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारे सर 2 सेंटर्स हैं, एक 100 बेड का हॉस्पिटल है किमाड़ी में, ऑन एन एवरेज 100+ की OPD है हफ्ते में 6 दिन वहाँ पे। सिमिलरली कोरंगी में एक छोटा सेंटर है। इसके अलावा ज़ाहिर है हमने अभी स्टिग्मा की और इसकी बात की, इसी चैलेंज को देखते हुए हमने कम्युनिटीज़ में जाना शुरू किया कि मरीज़ हम तक ना आए, हम उन तक जाएं। और कराची की 50 स्लम एरियाज़ में इस वक्त भी हमारी OPDs ऑपरेशनल हैं, जो कि लोगों को उनके डोर स्टेप तक सर्विसेज ना सिर्फ प्रोवाइड करती हैं, उनके घर जाके उनको होम मैनेजमेंट स्किल्स, उनके घर जाके उनकी मदद करते हैं, पेशेंट के लिए क्या बेहतर है। टेलीफोनिक 24 आवर उनसे राब्ते में होती है हमारी टीम। और ये बहुत एक्सटेंसिव, ना सिर्फ वहाँ पे हमारा मोटिव, ये तो मरीज़ मिल जाए तो ये तो बाय प्रोडक्ट है वहाँ की, बट हमारा जो मेजर मोटिव होता है इसमें ये कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। और प्रिवेंशन क्या है नफ्सियात में? सिर्फ ये कि आगाही हो लोगों के कि क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्या चीज़ें आप अपनाएं तो आप ज़हनी बीमारियों से बच सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कोविड कि वैक्सीन करा ली है तो अब मैं बच जाऊँगा, या मैंने मास्क पहना है तो मैं बचूँगा। जो हमारे माशरे के हालात प्रैक्टिस है ना, ये कांस्टेंट है जी। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड अ वेरी कॉन्शियस एंड वेल अवेयर्ड एफर्ट। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को इजी करेंगे और चीज़ें चलेंगी। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि कम्युनिटीज़ में हमें एंट्री मिले, और वो जब लोगों को हम समझ आ जाते हैं देन वो छोड़ते नहीं हैं फिर साथ। और जितना कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा शऊर होगा शायद अपने ज़हनी अमराज के लिए या इश्यूज़ पे बात करने पे, ऐसा नहीं है। हम जब इस तबके में जाते हैं जिनको शऊर और जिनके पास माली तौर पे वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, वो हमारी बात को ऐसे जैसे लिख लेते हैं एंड दे फॉलो इट सो रिलीजियसली कि उनके पेशेंट में आउटकम भी बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है फ़ौरन ही। सो ये जो कलेक्टिव पूरी एफर्ट है, कम्युनिटी प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन, ये सिर्फ इसलिए कि एक तो मरीज़ की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। कारवान में उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं ट्रीटमेंट की, और विद इन अ डिग्निफाइड मैनर और एविडेंस बेस्ड। और वो जो पूरी दुनिया में अभी प्रैक्टिस होती है, वो दवाइयाँ जो बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी किस्म की दवाइयाँ और उसी किस्म की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पे पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। थोड़ी सी ना मिसकम्युनिकेशन भी हुई है मेंटल हेल्थ के हवाले से, ख़ास तौर से दवाइयों की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं ये और दिमाग ख़राब कर देती हैं। सो ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। कर सकती हैं। अच्छा। लेकिन जो एक प्रोफेशनल वेल मैनेज्ड मेडिकल साइंटिफिक इदारा जैसे कारवान हयात है, और जिस तरह की हमारे पास वेल ट्रेंड टीम है, उसका यही काम होता है कि जो भी दवा दी जाए वो सही, यानी सबसे पहले तो सही दवा हो, फिर सही मकदार हो, फिर वो सही वक्त तक मियाद तक दी जाए, और फिर पेशेंट्स को हम हेल्प करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो उसके पाबंद रहें कि इस वक्त खानी है, इस तरह खानी है। दूसरी बात ये कि ये भी बताना होता है कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको बताना और उनको उसके बारे में जब प्रिपेयर्ड हों वो कि हाँ ये हो सकता है, उससे उसको एक्सेप्ट करके और उससे आगे बढ़ना और उनका किस तरह फ़ायदा होगा, तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी होती है और इसको हम करते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं। और इस पे डॉक्टर साहबा के पास एक 24 घंटे आप कह लें कि हेल्पलाइन मौजूद है कि जिसमें अगर किसी को किसी वक्त कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जो कि उसकी यूनिक है कि उसको ये हुआ, अब वो चाहे उस दवा से हो या ना हो, सो वी कैन हेल्प ऑलवेज प्रोवाइड दैट कम्फर्ट।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एक कंफर्ट या एक इत्मीनान पहुंचाना कि जो दवा आपको दी जा रही है वो मेयारी है, बहुत अच्छी। सर आजकल के दौर में लोगों के ऊपर ना स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ऑब्वियसली घर में नाचाकियाँ बहुत पैदा होती हैं, एंगर मैनेजमेंट की बड़े इश्यूज़ हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें नज़र आता है सड़क के ऊपर जिस तरह से लोग कभी कभी बिहेव करते हैं, आपके सामने ही है, हम भी भुगत रहे होते हैं। एंगर मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली हालात ऐसे हैं, सो उस पर अलहयात जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको कामयाब भी करें। मैं पर्सनली आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, हमने इनके नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे चलाए हैं, वाया बैंक ट्रांसफ़र आप डोनेशंस कर सकते हैं, ज़कात सदकात भी आप लोग ले रहे हैं जी, उसका एक बिल्कुल अलग सिस्टम होगा और डोनेशन का भी है, हम बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है, जो एक एक पैसा आता है ज़कात का वो उसके मसरफ़ के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। सो विद ऑथेंटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो कि हमारी वेबसाइट www.keh.org.pk पे मौजूद हैं। 111534 हमारी हेल्पलाइन है जो 24 आवर रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी क्वेरीज़ को और उनको। तो प्लीज़ सिर्फ एक लिबर्टी में, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, इस जस्ट के देखें हर 4 में से एक शख्स ज़हनी अमराज का शिकार है ओवरऑल ग्लोबल। तो हम अब बात करते हैं हर घर की, जब हर घर की बात हो ना तो सबको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है। आपकी सर्विस ये भी बहुत होगी कि आप कारवान हयात में मरीज़ों को भी रेफ़र कर दें, क्योंकि वो जो जगह जगह फिर रहे हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा, तो उनको एक मुस्तनद इदारे और ऐसा रिनाउंड रेपुटेबल नेम जो 41 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा है और सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ है और ये कहीं अवेलेबल ही नहीं है इस तरीके का मॉडल। तो दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस बियॉन्ड दैट फाइनेंशियल हेल्प दैट पीपल एक्सटेंड, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन सर्विस कि आप लोगों को रेफरल दे कारवान हयात का। थैंक यू सो मच मैम। और इसमें जिस तरह का हमारा अब लैंडस्केप या कैनवस कह लें आप है, और जिस तरह एक ये चीज़ें बाहर आ रही हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, पहले इसको हम प्रॉब्लम ही एक्नॉलेज नहीं करते, तो अब ये है कि प्रॉब्लम है और उसके लिए हम कारवान हयात को बहुत कई गुना स्केल अप इसलिए करना चाहते हैं ताकि ये जो एक्सपर्टीज़ हमारे पास है मुख्तलिफ ज़ावियों लोगों की तक पहुँचे, वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, सिर्फ किमाड़ी तक ही महदूद ना रहे। वाई कांट वी सेट अप अ स्मॉलर कारवान हयात इन एक्स एरिया ऑफ कराची, वाई एरिया ऑफ कराची। उसके लिए हमें फिर बियॉन्ड स्मॉल चैरिटेबल फंडिंग वी नीड बिग टाइम फंडिंग, और उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं माजरत चाहता हूँ वो क्या करें, ये ब्रेकें जो है ना जी 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 ये बड़ी ज़रूरी हैं, बड़े लोगों की रोज़ियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।